Hello students, welcome back to the site of resonance. In the previous class we have studied about pressure. That pressure is thrust acting per unit area or the perpendicular force acting per unit area. Okay, and the SI unit of pressure was Newton per meter square, or you can say it as pascals. We have seen that how pressure depends on area, that on increasing area pressure decreases and on decreasing area pressure increases for a given quantity of force. We have also seen that how pressure depends on force for a given area, that on increasing force the pressure increases and on decreasing force the pressure decreases. Okay, we have seen some practical applications of pressure, such as the bag straps are broad, the knives are sharp, means area is less over there to increase pressure. The camel foot are broad so that the pressure is reduced as area is increased. So we have seen all those things. Now we will going to talk about pressure in fluids. Pressure in fluids. Now see how fluids exerts pressure. How fluids exerts pressure, let's see. To understand that how fluids exert pressure, we are taking an example. In that example we are taking a beaker. See, this is a beaker. Okay, in this beaker there is a fluid filled. There is a fluid filled like this. Okay. Now if there is a fluid filled in it, on microscopic level we can see that there will be atoms and molecules. There will be atoms and molecules in this fluid like this, isn't it? Yeah, definitely. These molecules and atoms which are in this fluid will be moving with certain velocities in a random direction. In some random direction they will be moving. Now why they will be moving? They will be moving because of the thermal energy, because there is some temperature and that temperature has provided them energy, due to which they are in random motion. They are in random motion with certain velocities. See, while they are in random motion, there will be some molecules which will going to strike the wall of this container. When they will going to strike the wall of this container, means after striking, after colliding with the wall, their velocity will going to change. Their velocity will going to change. सी हो क्या रहा है, आप मुझे इधर देखिए और समझे. ये जो रूम है इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है. इट कैन बी एयर, इट कैन बी लिक्विड. अब उस फ्लूइड के अंदर देयर विल बी सम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. देयर विल बी सम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, एंड दोज मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स विल बी मूविंग हियर एंड देयर इन अ रैंडम फैशन. They will be moving here and there in a random way with certain amount of velocity, and that velocity is due to the thermal energy, because there is certain temperature. Due to that temperature they have some energy by which they will be moving randomly over here and there. While doing so, some molecules will going to collide with the walls of these container. They will going to collide with the walls of these container. When they will going to collide, let us see, imagine this is a molecule. This molecule came here and it collided with this wall. After colliding with this wall, this molecule is going to move with some different velocity. Why velocity has changed? I am not talking about the magnitude. Magnitude will change or not, it will going to depend upon the type of collision. Is it elastic, inelastic, or which type of collision? But direction has changed, that you know. Molecule आया कुछ इस तरीके से था और गया इस direction में. Means previously the direction of the velocity was this, and after colliding the direction has changed. If the direction has changed, velocity has changed. What has been changed? Velocity. So the velocity of these molecules which are colliding with the walls of the container has changed. If the velocity is changed, there will be a change in momentum. There will be a change in momentum. And what will going to bring this change in momentum? From the previous chapter, that was previous to previous chapter, that was Newton's laws of motion and Lm. From the second law we know that the change in momentum can be bring by force. So there will be some force which will going to bring this change in momentum. मतलब वो जो मॉलिक्यूल आया ऐसे और टकराकर ऐसे चल गया, तो इसकी वेलोसिटी को किसने चेंज करा बच्चों? किसी फोर्स ने चेंज करा है. तो
इस मॉलिक्यूल पे इस वॉल ने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। बहुत ही बढ़िया बात। अगर if this wall has exerted some force on this molecule, then from the third law of Newton we know that this molecule will also going to exert some force on this wall, isn't it? Yes, definitely. So this molecule will going to exert some force on this wall, and that force will going to create some pressure on this wall. So this is how liquids, gases and fluids exerts pressure. वापस समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं हेयर एंड देयर। वाइल डूइंग सो दे विल गोइंग टू कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो जैसे इस वॉल से कोलाइड करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी मतलब मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम में चेंज कौन ला सकता है बेटा, याद करो वो न्यूटन का लॉ, सेकंड लॉ, जिसके अंदर उसने कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मैंने आपको बताया था मोमेंटम में चेंज कौन ला सकता है, केवल और केवल फोर्स ला सकता है। तो इस मॉलिक्यूल पे वॉल ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हुआ। तो मॉलिक्यूल भी थर्ड लॉ से मुझे पता है इस पे फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। तो इस वॉल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स यहाँ पे प्रेशर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा बच्चों, प्रेशर। दिस इज हाउ फ्लूइड्स एक्सर्ट्स प्रेशर। दिस इज हाउ fluids exerts pressure. So the topic is pressure in fluids. Topic is pressure in fluids. तो ये बात हमने करी दैट हाउ फ्लूइड्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर। अगर कोई फ्लूइड किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा होगा तो पाइप पे प्रेशर लगा रहा होगा। फ्लूइड किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। सो दिस वाज फ्लूइड्स एक्सर्ट्स प्रेशर, हाउ दे एक्सर्ट्स प्रेशर। नाउ सी आई एम मूविंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक, that is atmospheric pressure. That is atmospheric pressure. See, what is atmospheric pressure? I am completely submerged in a fluid, you are completely submerged in a fluid, and the fluid is nothing but it is the air. It is the air. We are completely submerged in a fluid, that is air. That is air. Means that air is a fluid, it will going to exert some pressure on me, it will going to exert pressure on these walls, it will going to exert pressure. So we are submerged in a fluid means that fluid is exerting certain amount of pressure. The pressure exerted by the atmosphere, the pressure exerted by the atmospheric column at sea level is known as the atmospheric pressure at sea level. तो atmospheric pressure कुछ नहीं है, it is the pressure exerted by the atmospheric column at that place. At that place, it varies from place to place. That is why atmospheric pressure changes from place to place. At sea level, the value of atmospheric pressure is 101,325 Pascal. So let's see about something about atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? It is the pressure. It is the pressure exerted by the atmospheric column at sea level. तो atmospheric pressure at sea level आ जाएगा. Atmospheric pressure at certain place, it will be the pressure exerted by atmospheric column over that place. Okay. तो pressure exerted by atmospheric column is known as atmospheric pressure. हम इसको atmospheric pressure बोलते हैं क्योंकि मुझे पता है एटमॉस्फेयर मतलब एयर, एयर क्या फ्लूइड है तो प्रेशर लगाएगी। अभी हमने देखा फ्लूइड्स एक्सर्ट्स प्रेशर, सो वो प्रेशर लगाएगी। तो वो जो प्रेशर लगाएगी कौन, एटमॉस्फेयर का पूरा कॉलम किसी भी एक प्लेस पे, वो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर मैं बात करूँ तो 1 atm दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 atm इज इक्वल्स टू 101,325 पास्कल एंड दिस इज एट सी लेवल, एट सी लेवल। You have to remember this conversion formula to convert atm into Pascal. So 1 atm means 1 atmospheric pressure at sea level, it is 101,325 Pascal. We have measured this, that at sea level the value of sorry atmospheric pressure is so much. Okay. So इतना अमाउंट का प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है हम पर, कहाँ पर, सी लेवल पर। हम सी लेवल क्यों चूज करते हैं? बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म फॉर होल ऑफ द अर्थ, फॉर होल ऑफ द अर्थ दिस
पैरामीटर इज यूनिफॉर्म। सी लेवल हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, बाकी चीज़ें एल्टीट्यूड वगैरह डिफरेंट होगी, माउंटेन्स पे चल जाओ, प्लेट्यूज पे चल जाओ, प्लेन्स पे चल जाओ, बट एट सी लेवल इज समथिंग विच इज यूनिफॉर्म फॉर होल ऑफ द अर्थ, दैट इज वाई वी हैव चूजन दैट दिस सी लेवल इज द रेफरेंस पॉइंट। सो इतना प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेयर सी लेवल पर, हमारी बॉडी पर भी। ओके, छोटी छोटी बातें, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इतनी काम की नहीं है बट इंटरेस्टिंग है, तो वो बता देता हूँ। सी दिस एटमॉस्फेयर ओवर हेयर इज exerting this amount of pressure at me if I am at sea level. Okay, so why I'm not feeling that pressure, why that pressure has not been felt by me? See, blood in my body will going to exert blood pressure, isn't it? You know, you calculate also the BP of a human body, that is known as blood pressure. तो मेरे अंदर जो fluids हैं, they are also exerting certain amount of pressure on my body. So these pressures are getting cancelling out, the force due to these pressure is getting cancelling out, that is why I'm not feeling that pressure. But when I'm going into the space, when astronauts go into the space, that is on moon or in satellites or on the space station, they inside space station they have maintained the pressure, but outside when they do the spacewalk, they wear a special type of suit that you have seen. In that suit, this pressure is maintained. Why? Because if they haven't maintained that pressure, then the pressure inside our body will be more and pressure outside is less, because there is no pressure, there is vacuum, completely vacuum, so there is no pressure outside. So what will going to happen, students? The blood from our veins will going to burst the vein and going to come out, because there is a tendency of fluid to flow from high pressure to low pressure. So the blood which is in my veins or arteries, they are at high pressure, but the pressure outside is nil, so they will going to try to move out, they will going to burst my veins, my cells will going to burst, because my cells contain water and the water will going to come out, means my complete body will going to get burst. Okay, so that is the importance of atmospheric pressure for us. Now see, we will going to discuss something more about pressure. There are types of pressure that I am going to discuss with you. Types of pressure. See, in types of pressure, what I am doing is I am making a diagram. Look here, it is a diagram. It is just a diagram, it is not a graph. See, I am marking this as the atmospheric pressure. This is my atmospheric pressure, PATM, and its value is 101325 pascals. Okay, at sea level, that I know. Now see, and this is line of P equals to 0. P equals to 0, यहाँ पे प्रेशर 0 है, यहाँ पे प्रेशर 101325 पास्कल हो गया। अब हम दो तरीके से प्रेशर को नाप सकते हैं, अभी बात करते हैं कैसे। बेटा अगर मैं 0 को रेफरेंस लेकर प्रेशर को नाप रहा हूँ, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है मेरे पास A और एक पॉइंट है मेरे पास B। एक्सक्यूज मी। सी, अगर मैं रेफरेंस मेरा 0 ले रहा हूँ, अगर मैं रेफरेंस मेरा क्या ले रहा हूँ बेटा, 0 ले रहा हूँ ये, तो ये जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, ये वाली, इसको मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलता हूँ? एब्सोल्यूट प्रेशर, P एब्सोल्यूट। दिस इज माय एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ पॉइंट A and this is also my absolute pressure of point B. This is also my absolute pressure of point B when I have taken what? Reference 0. मैं 0 प्रेशर से मेजर कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहलाता है? ये एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन वहीं अगर मैं A पॉइंट का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में मेजर करूँ ये, तो ये कहलाता है गॉज प्रेशर। क्या कहलाता है बच्चों? गॉज प्रेशर। और वहीं अगर मैं B पॉइंट का एटमॉस्फेरिक रेफरेंस से मेजर करूं, तो ये भी कहलाता है गॉज प्रेशर। ये भी क्या कहलाता है? गॉज प्रेशर। अब आप समझें गॉज प्रेशर क्या होता है। गॉज प्रेशर होता है जो गॉज मेजर कर रहा है। अब गॉज अपने एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, तो वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर ना करके वो एटमॉस्फेयर के ऊपर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर के नीचे कितना प्रेशर है, वो मेजर करता है। उसने रेफरेंस, उसने 0 किसको मान रखा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसने गॉज क्या करता है? वो मान लेता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 0। अब एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर है
तो इतना बता देगा कि इतना ज़्यादा है, दैट इज गॉज प्रेशर। और अगर कम है तो बता देगा नेगेटिव में, वो किस में बता देगा, नेगेटिव में। दिस इज नेगेटिव गॉज, दिस इज नेगेटिव गॉज प्रेशर। और इसी को हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर ऑल्सो। क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। जब गॉज प्रेशर नेगेटिव हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। और अगर मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ जो जीरो एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो नहीं मान रहा, वो उसको इंक्लूड कर कर प्रेशर बता रहा है, तो मतलब ये ओरिजिनल जीरो के ऊपर इतना प्रेशर है। जीरो मीन्स कंप्लीट वैक्यूम, जीरो मीन्स कंप्लीट वैक्यूम। तो जीरो के ऊपर जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये भी इसका एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये गॉज प्रेशर है। ये क्या, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर में क्या होता है बच्चों, वापस सुनो, गॉज प्रेशर में हम मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को क्या मान लिया, जीरो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है, वो गॉज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम प्रेशर है, तो इतना कम प्रेशर है, वो गॉज प्रेशर। लेकिन आपने जीरो, ओरिजिनल जीरो को माना है, मतलब जीरो को माना है, जब प्रेशर जीरो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहे, तो जो ओरिजिनल प्रेशर है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर में रिलेशन चाहिए तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ दैट P एब्सोल्यूट ये प्रेशर इक्वल्स टू P ATM प्लस P गॉज। भाई एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। और अगर गॉज प्रेशर नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यू कैन पुट अ प्लस माइनस साइन ओवर हियर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। मिनिमम प्रेशर क्या रहेगा, जीरो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन क्या गॉज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो नीचे चल गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसी को क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन गॉज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, गॉज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है। वापस समझें, गॉज प्रेशर मतलब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या मान लिया, जीरो। तो आप देखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम प्रेशर है। और एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो से नापोगे। ओके, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये इस पॉइंट का एब्सोल्यूट, दैट इज द ओरिजिनल प्रेशर, बिकॉज जीरो को आपने जीरो लिया। लेकिन यहाँ पे आपने जीरो किसको ले लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया। तो गॉज प्रेशर में यू डोंट कंसीडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दे। तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये ओरिजिनल प्रेशर नहीं आया, मुझे इसमें गॉज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना है, वो असली प्रेशर होगा। So these are the types of pressure and the relation between these pressure. Now moving a bit forward, I am discussing another term which is known as density. See, what is density? Density is the mass per unit volume. This is density. It is represented by a sign that is rho. इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। तो रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, केजी मास की, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। सो केजी पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ मुझे जल्दी से, आपको आती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, दैट इज डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में द अमाउंट ऑफ मास इन अ यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं डेंसिटी को, सी यू नो दैट देयर आर डेंस फॉरेस्ट एंड देयर आर not that much dense forest. तो डेंसिटी से क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नेवर डिसाइड देयर डेंसिटी इन अ फॉरेस्ट। क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट एरिया के अंदर अगर ज्यादा ट्रीज आ गए, मतलब बहुत पास पास ट्रीज हैं, तो आप क्या कहोगे, ये ज्यादा डेंस है, ये क्या है, ज्यादा डेंस है। सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। अगर यूनिट वॉल्यूम लूँ मैं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले ली, उसके अंदर बहुत ज्यादा मास है, मतलब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि मास कहाँ से आएगा, मॉलिक्यूल्स और एटम से आएगा, तो बहुत ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, पास पास रहेंगे वो बहुत।
और वहीं अगर वो लूजली मूव कर रहे हैं, थोड़ा दूर दूर है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमको पता है डेंसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम और गैसेस की कम जनरल। कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी रहते हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी रहते हैं, लाइक इन केस ऑफ आइस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर मोर। सो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या है इसकी? केजी पर मीटर क्यूब, एसआई और सीजीएस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है अपने पास? डेंसिटी होती है। ये बात हमने डेंसिटी की कर ली। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, और नाउ वी आर डिस्कसिंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर। वी आर डिस्कसिंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर. So let's move forward on units of pressure. See what we will going to discuss in the units of pressure. I am taking out the all units at one place. I am bringing all the units of pressure at one place which are useful to us. So there are, because there are many units of pressure. The first unit I am writing is the Pascal. Pascal, it is also known as Newton per meter square. Okay, this is the SI unit. This is the SI unit. Moving to second is 1 atm, 1 atmospheric pressure, that is equals to 101,325 pascals. ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया. 1 atm क्या होता है? 101,325 पास्कल. द थर्ड यूनिट इज 1 बार. 1 बार इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल. ये भी एक यूनिट है बच्चों, बार. तो 1 बार कितना होता है? 10 to the power 5 पास्कल होता है. एक सीजीएस यूनिट नहीं है, गलत उसमें मत रहना. 1 बार एक प्रैक्टिकल यूनिट है. जब प्रेशर की वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, 10 to the power 6, 10 to the power 7, तो बच्चों इसको प्रैक्टिकली, अब ये देखो कितना अजीब सा लग रहा है 101,325 पास्कल, लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको बार की फॉर्म में लिखूंगा तो बहुत आसानी से 1.01 बार लिख सकता हूँ. क्या लिख सकता हूँ? 1.01 बार. तो जब यूनिट्स बड़ी आ जाती है तो बार बार 10 to the power समथिंग 10 to the power समथिंग लगाने से बढ़िया हमने एक बड़ी यूनिट बना दी, दैट इज बार. 1 बार इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल. एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 to the power 5. मूविंग टू फोर्थ, this is 760 mm of Hg and this is equals to 1 atm. This is equals to 1 atm. 760 mm of Hg. इस पे हम बात करेंगे but not now. I will going to discuss about it. Certainly I will going to discuss but not now. I will going to discuss this in the further more topics. Okay. So 760 mm of Hg. लेकिन मैं आपको भी एक बात बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर mm है. mm किसकी यूनिट होती है? लेंथ की. लेकिन मैंने ये यूनिट किस में यूज़ कर रहा हूँ? प्रेशर में. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ से ये यूनिट आई, कैसे बनी, हम बाद में बात करेंगे. फॉर टाइम बीइंग आप इसको ऐसे के ऐसे याद कर लो, क्योंकि बाद में भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा समझने के बाद. सो 760 mm of Hg equals to 1 atm. Now moving forward, that is fifth, 1 torr and 1 torr equals to 1 mm of Hg. 1 torr equals to 1 mm of Hg. तो एक और यूनिट आ गई torr, and 1 torr equals to 1 mm of Hg. Okay, these are the some basic units that you have to remember. यूनिट्स और भी हैं बट हमारे काम में यही आनी है, तो हमने इनको एक तरफ लिख लिया है. ओके, अब लेकिन ये 1 mm 760 mm ये हम डिस्कस करेंगे कब? अगले वाले टॉपिक्स में. तो अभी हमने ये पढ़ा. अब नाउ सी व्हाट आई विल गोइंग टू स्टार्ट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स विद डेप्थ. व्हाट विल गोइंग टू स्टार्ट इज द variation of pressure in fluids with depth. See, variation of pressure in fluids with depth. I am taking a container. Okay, in this container there is a fluid. In this container there is a
there is a fluid like this. Okay, this is a fluid which is in a container, okay. अब मुझे देखना है कि डेप्थ के साथ फ्लूइड में प्रेशर में क्या चेंज आता है, विद डेप्थ हाउ प्रेशर इज चेंजिंग, आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं देखता हूँ, मैंने ये माना है कि ये जो प्रेशर, ये जो हाइट ऑफ लिक्विड इन दिस कंटेनर, इट इज कैपिटल H, इट इज कैपिटल H लाइक दिस। ओके, सो ये एक हाइट है इसके अंदर। डेंसिटी हम मान लेते हैं, इस फ्लूइड की डेंसिटी है बच्चों कितनी, डेंसिटी है रो, डेंसिटी कितनी है, रो डेंसिटी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे प्रेशर निकालता हूँ, कहाँ पर प्रेशर निकालता हूँ, यहाँ पे, ओके। और मैं जो निकाल रहा हूँ, आई एम टेकिंग आउट दी गॉज प्रेशर। मैं कौन सा प्रेशर निकाल रहा हूँ, गॉज प्रेशर। मतलब मैंने यहाँ पर क्या मान लिया है, गॉज प्रेशर निकालने के लिए यहाँ प्रेशर क्या है, जीरो, क्योंकि गॉज प्रेशर में हमारा जीरो कहाँ पे रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है मेरा, जीरो। तो यहाँ पर मेरा प्रेशर क्या लग रहा है, जीरो। यहाँ पर ए पॉइंट पे मेरा प्रेशर क्या है, जीरो, और बी पॉइंट पे मुझे प्रेशर निकालना है, पी एट ए इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग गॉज, आई एम कैलकुलेटिंग गॉज प्रेशर। और पी ए एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, एटीएम के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे क्या निकालना है बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा तो मैं कंसीडर करूंगा किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मैंने बताया गॉज प्रेशर में आप कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लेते हो। अब जो प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, या हो सकता है वो जीरो आ जाए, मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो गॉज प्रेशर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करा, लेकिन एब्सोल्यूट में मुझे करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्लस दिस आएगा, ठीक है। और पी बी मुझे निकालना है, पी एट बी आई हैव टू कैलकुलेट। हो सकता है पी ए के बराबर ही पी बी आ जाए, तो हाइट के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब डेप्थ के साथ कोई वेरिएशन नहीं है। बट अगर अलग आया तो डेप्थ के साथ वेरिएशन है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे बच्चों। इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। कितनी है इसकी डेंसिटी, रो है। और हाइट कितनी है, h। मैंने जो इसका एरिया माना है, इसका एरिया आई एम टेकिंग एरिया इक्वल्स टू ए। एरिया क्या मान लिया बच्चों अपन ने, इसका ए। तो मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर क्या इसके वेट की वजह से लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। मुझे एक चीज पता है, प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, इसका वेट फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। इसका कुछ वेट होगा, वो नीचे फोर्स लगा रहा होगा। वेट कितना होता है, अब तो हम ग्रेविटेशन भी पढ़ चुके हैं, फटाफट बोलो। वेट होएगा mg। वेट क्या होएगा, m इंटू जी। वेट क्या होएगा, m इंटू जी डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर आ गया मेरे पास, क्या आ गया, प्रेशर। अब मुझे m तो पता नहीं है इसका, मुझे m पता नहीं, और मुझे वैसे भी h के साथ वेरिएशन देखना है। किसके साथ वेरिएशन देखना है, h के साथ। तो मास को मैं चेंज करूंगा डेंसिटी h की टर्म्स में, डेंसिटी और h के टर्म्स में इधर से कर लूंगा। बहुत बढ़िया, कैसे करोगे सर, तो देखो इधर देखते हैं अपन रफ के अंदर थोड़ा सा, मतलब एक साइड में मैं एक कॉलम बना के देखता हूँ। डेंसिटी होएगी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, मास। वॉल्यूम क्या है इस लिक्विड की, वॉल्यूम क्या है जल्दी बताओ, एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर क्यूब बन गई ना। एरिया इनटू हाइट क्या आ जाएगी, वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट इक्वल्स टू मास। तो मेरे पास मास की वैल्यू आ गई रो ए एच। मास की वैल्यू क्या आ गई, रो ए एच। वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी रो ए एच जी डिवाइड बाय ए। ओके, अंडरस्टूड। अब एरिया एंड एरिया गेट्स कैंसिल आउट, व्हाट आई एम गेटिंग प्रेशर, व्हाट आई एम गेटिंग प्रेशर, आई एम गेटिंग प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। दिस इज माई प्रेशर, दिस इज माई प्रेशर। और ये प्रेशर कौन सा आया है बच्चों, गॉज प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, गॉज प्रेशर। तो आपने देखा हाइट बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है फॉर दी सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड हुज डेंसिटी इज रो। तो प्रेशर h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप फ्लूइड के अंदर जाओगे। इफ यू डू स्विमिंग you can feel that pressure when you go into the depths of the swimming pool. There is a great amount of pressure on your ears and nose. You can feel that pressure.
So on increasing the depth, when you increase the depth in a fluid, pressure also increases by this formula, that pressure equals to rho g h. प्रेशर क्या होता है? rho g h. कौन सा प्रेशर है? गॉज. अगर मैं लिखना चाहूँ एब्सोल्यूट प्रेशर तो वो भी बड़ी बात नहीं है. एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर मेरे पास क्या जुड़ जाएगा? मुझे पता है एब्सोल्यूट प्रेशर होता है पी एटीएम प्लस पी गॉज. तो पी एटीएम प्लस पी गॉज. तो पी गॉज की वैल्यू क्या है अपने पास? रो जी एच. क्या है पी गॉज की वैल्यू? रो जी एच. ये मेरे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया. मैंने कुछ नहीं करा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दिया. मतलब पी ए की वैल्यू क्या ले लो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो दिस प्रेशर प्लस दैट प्रेशर क्या आ जाएगा? पॉइंट बी पे प्रेशर. तो दैट विल बी पी ए टी एम प्लस रो जी एच. क्या होएगा? यहाँ पे मान लो लग रहा है पी ए टी एम, अगर लग रहा है तो यहाँ पी ए टी एम प्लस यहाँ पर इसके वेट की वजह से रो जी एच. तो टोटल प्रेशर कितना आ गया बी पे? पी ए टी एम प्लस रो जी एच. वो एब्सोल्यूट होता है जो नेट प्रेशर, जो रियल प्रेशर. और ये क्या है? गॉज प्रेशर है, जो गॉज मेजर करेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, दैट प्रेशर वेरीज विद डेप्थ बाय द फॉर्मूला रो जी एच. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है, एच बढ़ रहा है, मेरे पास प्रेशर भी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है. प्रेशर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव अ बिट फर्दर. And see some important points. Let us see some important points. बेटा अगर बहुत सारे पॉइंट है एक लिक्विड कॉलम के अंदर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी और ये कोई पॉइंट है ई. अब देखो जो सेम हाइट पर पॉइंट्स हैं, जो सेम डेप्थ पे पॉइंट है, इनकी डेप्थ फ्री सरफेस से कितनी है? लेट अस से h1. इनकी डेप्थ कितनी है? h1. बेटा ये जो h आया है ना यहाँ पर h, दिस इज डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस. रिमेंबर हमेशा बॉटम सरफेस से डेप्थ हाइट नहीं है ये, दिस इज डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस. फ्री सरफेस से आप नापेंगे ये, जैसे मैंने ये नापी है फ्री सरफेस. फ्री सरफेस इज द इंटरफेस ऑफ एयर एंड लिक्विड. तो आपको कहाँ से मेजर करनी है बच्चों? फ्री सरफेस से. कहाँ से मेजर करोगे? हमेशा याद रखना फ्री सरफेस से. तो डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस है h. h क्या है? डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस. e की जो डेप्थ है वो मैंने मान ली दैट इज h2. इट इज h2. और जो d की डेप्थ है दैट इज h3. अब मैं जहाँ बात करने वाला हूँ, देखो प्रेशर A इक्वल्स टू प्रेशर B इक्वल्स टू प्रेशर C इक्वल्स टू रो जी H1, इजंट इट? मतलब अगर एक लेवल पे देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा. अगर उनका लेवल क्या है? सेम है. उनका लेवल क्या है? सेम है. कहाँ से लेवल लेना है? फ्री सरफेस से. कहाँ से लेवल लेना है? फ्री सरफेस से. प्रेशर एट E हो जाएगा रो जी H2. E पे प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? रो जी H2. और प्रेशर जो है D पॉइंट पे वो हो जाएगा रो जी H3. अब देखो H3 बड़ा है और H2 छोटा है, रो जी तो सेम है, तो प्रेशर D पर सबसे ज़्यादा है, फिर प्रेशर E पे और फिर प्रेशर A पे, जो कि बराबर है B पर और जो कि बराबर है C पर. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि डेप्थ जैसे बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा. डी की डेप्थ सबसे ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, ई का कम है तो उस पर कम है. लेकिन अगर बहुत सारे पॉइंट्स एक ही डेप्थ पर हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स भी हों, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का प्रेशर क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा. फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंट्स लाइंग एट सेम डेप्थ हैव सेम प्रेशर. उनका प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट. अगर कोई कंटेनर है, अगर कोई कंटेनर है बच्चों, और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है,
रो डेंसिटी का, और ये कंटेनर में जो लिक्विड है एच डेप्थ तक भरा हुआ है। कहाँ तक भरा हुआ है बच्चों? एच डेप्थ तक। तो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल, द एवरेज प्रेशर ऑन वॉल वो हो जाएगा रो जी एच बाय 2। कितना होता है बच्चों वो? रो जी एच बाय 2। एवरेज प्रेशर कितना आएगा? रो जी एच बाय 2। यहाँ पर प्रेशर रो जी एच है, यहाँ पर प्रेशर कितना है? रो जी एच। यहाँ पर प्रेशर कितना है? 0। तो इन वॉल्स पे जो प्रेशर लग रहा होगा, ये जो मैंने वॉल्स मार्क करी है, इन पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो एवरेज प्रेशर इतना लग रहा होगा। कितना? रो जी एच बाय 2। इन वॉल्स पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। हर पॉइंट पे डिफरेंट प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, यहाँ की डेप्थ अलग है, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। लेकिन अगर मैं एवरेज लूँ पूरी वॉल्स पे तो वो प्रेशर कितना आता है बच्चों? रो जी एच बाय 2। वो प्रेशर कितना आता है? रो जी एच बाय 2। तो हमने देखा एक लेवल पे लाई करने वाले पॉइंट्स का प्रेशर सेम रहता है, दैट इज रो जी एच, जो भी उनकी डेप्थ है। अगर डेप्थ बढ़ रही है तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, हमने देखा। और अगर एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है किसी कंटेनर में तो उसकी वॉल्स पे जो एवरेज प्रेशर लगता है वॉल्स पे, दीवारों पर, दैट इज रो जी एच बाय 2, दैट इज रो जी एच बाय 2। ओके, देयर आर मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विल डिस्कस देम आल्सो। तो थर्ड पॉइंट जो है अब अपने पास, दैट इज, लेट्स सी, if we are having some vessels like this, and there is another vessel like this, okay, and in these vessels there is a fluid which is filled up to the same height, that is h, okay. First point we have discussed that the pressure at same depth at the same level on infinite point is same. As the level increases means the depth increases, the pressure also increases. Second point we have discussed that the mean pressure on the walls of the container is rho g h by 2 if the liquid is filled up to a height h. Now there are three containers of different shape, sizes and different cross sectional area of the bottom. See, now the pressure at the bottom, that is over here, the pressure here and the pressure here, it is PA, this is PB and this is PC. Okay. Now writing pressure over here, I am writing the gauge pressure. I know pressure PA will be equals to rho GH, isn't it? Pressure B will also be equals to rho GH and pressure C will also be equal to rho GH. From equation 1, 2 and 3, I got pressure at A equals to pressure at B equals to pressure at C. Means if there are containers in which same liquid, means liquid of same density, is filled up to the same height h, then the pressure at the bottom is same in all the three cases. The pressure does not depend on the size of on the shape of these containers and the cross sectional area of these containers. Means pressure is independent of the shape of the container and the cross sectional area of the container. आपको दिखा प्रेशर के फॉर्मूले में आता है डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द हाइट और द डेप्थ यू कैन से फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो प्रेशर में कहीं भी शेप, साइज या फिर वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा. कौन सा प्रेशर? जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है एट द बॉटम ऑफ द वेसल. यू हैव सीन 3 वेसल्स ओवर हियर. द प्रेशर
on all the three vessels bottom is same, that is PA equals to PB equals to PC, where the shape of these vessels is different and the cross sectional area of the bottom area is also different in all these three cases. So pressure बच्चों area पे depend नहीं करता, वो प्रेशर एरिया पे डिपेंड कर रहा था, बट प्रेशर जो लिक्विड कॉलम एक्सर्ट करता है वो कंटेनर के बॉटम एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो कंटेनर की शेप पे भी डिपेंड नहीं करता. ये था हमारा थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर एक लेवल पर सेम रहेगा सारे पॉइंट्स पे. लेवल आप नीचे जाओगे, डेप्थ बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा. जो वॉल्स में प्रेशर लग रहा है एवरेज प्रेशर दैट इज रो जी एच बाई 2, और अगर शेप और एरिया डिफरेंट है किसका, वेसल्स का, तब भी जो बॉटम पे प्रेशर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड द एरिया ऑफ द वेसल्स. हमने देखा रो जी एच रो जी एच रो जी एच. नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दैट द thrust applied by fluids on container's wall is perpendicular to wall. तो जो थ्रस्ट लगा रहा है ये फ्लूइड, हमने देखा था फ्लूइड इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो इस सरफेस के हमेशा कैसे है बच्चों, परपेंडिकुलर है. सरफेस के हमेशा कैसे है, परपेंडिकुलर है. सरफेस के हमेशा कैसे है बच्चों, वो परपेंडिकुलर है. इट इज ऑलवेज एक्टिंग एट 90 डिग्री टू दी सरफेस. ओके, तो ये जो फोर्स लगाता है कौन, फ्लूइड वॉल्स पे, वो हमेशा किस एंगल पे लगाता है बच्चों, हमेशा इट इज एक्टिंग ऑलवेज एट 90 डिग्री. इट इज ऑलवेज एक्टिंग एट 90 डिग्री. कितने पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है. तो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट. तो हमने देखा जो प्रेशर होता है दैट इज रो जी एच. प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, जहां पर एच डेप्थ है फ्रॉम द फ्री सरफेस, रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फिर हमने देखा कि जो प्रेशर होता है वो जो वॉल्स पे लगता है वो एवरेज प्रेशर आता है रो जी एच बाई 2. सेम लेवल पे हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है. और अगर आप लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर अकॉर्डिंगली वेरी कर जाता है. वेसल किसी भी शेप की हो, उसका एरिया कुछ भी हो, जो बॉटम पे प्रेशर आएगा वो अगर सेम हाइट तक भरा हुआ है सारी वेसल्स में लिक्विड तो सेम आएगा. बॉटम पे प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा. और हमने देखा जो थ्रस्ट फ्लूइड लगा रहा है हमेशा परपेंडिकुलर लगा रहा है किसके, वॉल्स. मतलब जो फोर्स लगा रहा है, थ्रस्ट का मतलब हो ही गया परपेंडिकुलर, मतलब जो फोर्स लगा रहा है वो हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है किसके, वॉल्स के. ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट इन अ स्टैटिक फ्लूइड at a given point pressure is equal in all direction. See what it is saying, if I am taking a container and in this container there is a fluid, okay, in this fluid I have taken a point, this. So pressure at this point in all direction, this 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 direction, हर डायरेक्शन में जो प्रेशर है बेटा एक पॉइंट पर स्टैटिक फ्लूइड में वो क्या रहता है, इक्वल. क्या रहता है, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्टैटिक फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट. एट अ गिवन पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहता है बेटा, इक्वल रहता है. तो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए प्रेशर इन फ्लूइड के. फ्लूइड्स कैसे प्रेशर लगाते हैं हमको समझ में आ गया था. फिर हमने देखा कि अगर मैं डेप्थ बढ़ा रहा हूँ, फ्री सरफेस से डेप्थ बढ़ा रहा हूँ तो क्या प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे पास आया हाँ प्रेशर बढ़ता है. कितना हो जाता है, रो जी एच, अगर एच डेप्थ पे जा रहा हूँ तो. फिर हमने देखा रो जी एच की वजह से एक डेप्थ पे सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम था, और अगर मैं डेप्थ को इंक्रीज करता गया तो प्रेशर भी इंक्रीज होता गया. वॉल की बात करी तो वॉल पे जो मीन प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, रो जी एच बाय 2. उसके बाद देखा वेसल का कोई भी शेप हो, कुछ भी एरिया हो, प्रेशर जो बॉटम पे लगेगा अगर सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है तो वो क्या आएगा,
सेम आएगा। और जो थ्रस्ट लगता है, जो कि फोर्स लगाता है, कौन, लिक्विड या फिर फ्लूइड, मतलब लिक्विड या फिर गैस, कहाँ पे, सरफेसेस पे कंटेनर की, वो कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। कैसे लगता है, परपेंडिकुलर। और एक स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या रहता है बच्चों, इक्वल रहता है। आप कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, सब में प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा फॉर अ गिवन पॉइंट। हाँ, अगर आपने पॉइंट को चेंज कर दिया, यहाँ कर दिया, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे आ गए हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट प्रेशर. Now we should start some numerical problems on this, then we will going to start a new topic, that is buoyancy. तो हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। नाउ लेट्स बिगिन सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल करने के पहले हम थोड़ा सा नोट करके दो छोटी छोटी बातें लिख लें। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये दो डेंसिटी मैं इसलिए लिखा रहा हूँ बिकॉज दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू हैव टू रिमेंबर देम बाय हार्ट। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी ये डेंसिटी, इसलिए मैंने लिखा दी है। अगर ये गिवन है क्वेश्चन में, वेरी वेल, यू हैव टू टेक दैट वैल्यू ओनली। अगर वो यहाँ से वेरी भी कर रही है तो भी आपको वही वैल्यू लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। बट इफ इट इज नॉट गिवन, यू हैव टू consider these values. You have to consider these values. Okay, now let's begin with some numerical problems on it. So the first question that I am taking, write down soft snow can be compressed by about 21,000 pascals of pressure. What is the smallest area that a pair of snowshoes must have if they will enable a 70 kg person to walk over the snow without sinking? Again I am repeating, soft snow can be compressed by about 21,000 pascals. So there is a soft snow which can be compressed on an application of 21,000 pascals of pressure. What is the smallest area? What is the smallest area that a pair of snowshoes, what is the smallest area that a pair of snowshoes must have if they will enable a 70 kg person to walk over the snow without sinking in it? So what is given to me is that pressure should be 21,000 pascal. I have to calculate the area and the mass of the person is given to me as 70 kg. मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 70 kg का आदमी है, उसके शूज के पेयर, मीन्स द पेयर ऑफ शूज का एरिया कितना होना चाहिए कि वो 21,000 पास्कल जो कि स्नो बियर कर सकती है, इस पे बिना सिंक हुए चल सके। मतलब अगर 21,000 पास्कल से ज़्यादा प्रेशर लग गया, चेंज दिस 21,000 टू 2100 ओनली। ओके, सो अगर 2100 से ज़्यादा प्रेशर लग गया तो वो आदमी क्या होगा, सिंक डाउन हो जाएगा, क्योंकि स्नो इतना ही प्रेशर बियर कर सकती है। तो मुझे एरिया बताने कि वो शूज़ का कितना एरिया वाले शूज़ पहने कि वो आराम से चल सके। समझ में आ गया भाई? स्नो 2100 पास्कल बियर कर सकती है, द पर्सन वेट इज 70 kg, व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ द शूज ही शुड वियर सो दैट ही कैन मूव फर्मली ऑन स्नो विदाउट गेटिंग सिंकिंग डाउन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि भाई प्रेशर मुझे कितना चाहिए, 2100 पास्कल, और मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया 2100। फोर्स क्या होएगा यहाँ पर, फोर्स कौन लगाएगा, ये आदमी। आदमी फोर्स कैसे लगाएगा, अर्थ इसको पुल करेगी नीचे तो इसका वेट नीचे लगेगा, वेट होता है mg। तो फोर्स की वैल्यू हो गई mg अपॉन एरिया इक्वल्स टू 2100। मास कितना गिवन है बच्चों, 70, g की वैल्यू 10, एरिया मुझे निकालना है a 2100, सी 0 से 0, 0 से 0 है ना। तो एरिया की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7/21 इक्वल्स टू एरिया, 7/21 इक्वल्स टू एरिया। सो ये आ गई अपने पास 1/3 मीटर स्क्वायर। 1/3 मीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ द पेयर ऑफ शूज। ओके, सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया जिसमें मास गिवन था 70 kg, तो इसका वेट नीचे कितना लग रहा होगा, 70 × g। वेट
मास इंटू एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एरिया मुझे निकालना था और प्रेशर कितना होना चाहिए मैक्सिमम 2100, तो मिनिमम एरिया जो आया है वो इतना आया। अगर इससे एरिया ज़्यादा भी होगा तो प्रेशर कम ही आएगा, लेकिन इससे कम एरिया के शूज उसने पहन लिए तो वो क्या करेगा, सिंक डाउन कर जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, what is the pressure at a depth of 23 meter in water? Means I have to calculate pressure at a depth of 23 meter in water, and you have to calculate both gauge pressure and absolute pressure. So I am taking illustration number 2. Illustration number 2, the depth, that is the H, is given to me as 23 meter. I have to calculate the pressure. Means there is water like this, and it is filled up to 23 meter. It is filled up to 23 meter. What I have to calculate pressure. I know pressure equals to rho gh. हमें एक ही फॉर्मूला पता है प्रेशर का, rho gh फ्लूइड के अंदर। तो रो की वैल्यू 1000, वाटर है ना बेटा, मैंने बताया वाटर के लिए रो की वैल्यू कितनी होगी ऐसा यूनिट में 1000। g की वैल्यू अपन ले लेते हैं 10 अप्रॉक्सीमेट, और h की वैल्यू अपने पास कितनी है बच्चों 23। कितनी है 23। तो ये आ गया 23 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंड 1 4 पास्कल्स। कौन सा प्रेशर आया, ये गॉज प्रेशर। कौन सा प्रेशर आया, गॉज। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा बच्चों, P एब्सोल्यूट हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस P गॉज। P एटमॉस्फेरिक होता है 101325 प्लस 23 इंटू 10 टू दी पावर 4। मैं इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकता हूँ 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस 2.3 into 10 to the power 5. Taking out 10 to the power 5 common, what I will going to get? I will going to get 3.31. So 3.31 into 10 to the power 5 pascals is my answer of absolute pressure, and this is my gauge pressure. This is my gauge pressure. Again a very easy example that we have taken. Now let's move forward to the next numerical problem. I hope you are getting these problems, isn't it? Aren't they easy? I think very easy problems. Okay, now let's move forward. What is the pressure due to a man weighing 80 kg standing on his feet? Area of his feet is equal to 160 square centimeter. Okay, so what is given to me is a man whose weight, whose mass is, there is a man whose mass is 80 kg. Mass of a man is 80 kg and the area of his shoes is 160 square centimeter. Area is 160 square centimeter, and what is the mass? Mass is given to me as 80 kg. What I have to calculate is the pressure exerted by that man. So I know that pressure equals to फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना हो जाएगा मास की वजह से mg, एरिया एरिया, ये मेरे पास प्रेशर आ जाएगा। मास की वैल्यू कितनी है बच्चों 80, g की वैल्यू कितनी होती है 10, एरिया की वैल्यू दी है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो वो हो जाता है 10 टू द पावर -4। वी नो व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट square centimeter into square meter, you will going to multiply by 10 to the power -4, so it will going to come out to be 800 divided by 60 into 10 to the power 4. So you can solve it 0 to 0, this goes 10 times, this goes 2 times, this goes 5 times, so 5 into 10 to the power 4 Pascal is your answer. 5 into 10 to the power 4 Pascal is your answer. Again a very easy question. These questions are just formula based. You should remember the formulas and you can calculate the value. Now let us take one more question. The next question that we are taking, it is a cuboid has a dimension. There is a cuboid whose dimension is given to me and it is 0.4 meter into 0.6 meter into 0.2 meter. Means length is 0.6 meter, breadth is given to me as 0.4 meter and height is 0.2 meter. Means the dimension are 0.4 into 0.6 into 0.2 meter and a weight of 288 Newton. What is the maximum pressure exerted by the cuboid? The cuboid weight is given to me as 288 Newtons. Okay. Now let's have a look on this question also. Question number 4th. 0.4 meter into 0.6 into 0.2 meter.
this is the dimension of a cuboid which is given to me, and the weight of this cuboid is given to me as 288 Newton, isn't it? Yes, 288 Newton. I have to calculate the P max value. What will be the maximum pressure? सी अब क्यूबॉइड है अपने पास और हमको मैक्सिमम प्रेशर निकालना है. ये वेट इस क्यूबॉइड का ही गिवन है, ये वेट इस क्यूबॉइड का ही गिवन है मुझे. तो ये एक मेरे पास क्यूबॉइड है कुछ इस तरीके से. कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड है अपने पास जिसकी this is given to me as 0.4 I can take, this is given to me as 0.6 and this is given to me as 0.2 meter. Okay. अब अगर P max निकालना है अपने को, क्या निकालना है बच्चों? P max निकालना है. तो P max कैसे निकलेगा? प्रेशर मुझे पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के. देखो वेट मतलब फोर्स तो फिक्स है अपने पास, क्या चीज फिक्स्ड है? फोर्स इज फिक्स्ड. सो टू कैलकुलेट मैक्सिमम प्रेशर एरिया शुड बी मिनिमम. अगर मैं एरिया को मिनिमम कर दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम. हमको पता है. तो यहाँ पर मिनिमम एरिया कहाँ मिलेगा? या मिनिमम एरिया मुझे तब मिलेगा जब मैं 0.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं. 0.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब ये जो एरिया है ये मेरे पास मिनिमम एरिया है, क्योंकि ये लेंथ, ये हाइट 0.2 है और ये 0.4 है. इससे एक छोटा एरिया मेरे पास नहीं आ सकता. तो इस एरिया मतलब इस क्यूबॉइड को मैं इस एरिया पे रखूंगा. कैसे रखूंगा? इस एरिया पे रखूंगा. मतलब जो नीचे वाला सरफेस है वो 0.4 और 0.2 साइड कंटेन करेगा. तब मेरे पास प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम हो जाएगा. वापस सुनो, प्रेशर मैक्सिमम करना मतलब एरिया आपको मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि वेट तो फिक्स है, फोर्स फिक्स है. अब आपको अगर प्रेशर को मैक्सिमम करना है तो एरिया को क्या करना है? मिनिमम. एरिया मिनिमम कब होएगा? जब 0.4 और 0.2 वाली साइड पे ये क्यूबॉइड रखा हुआ हो. ये क्यूबॉइड कैसे रखा हो? आप ऐसे समझो, ये डस्टर है ना, दिस इज गिवन टू मी एज 0.6. ये कितनी गिवन है बच्चों मुझे? 0.6. ठीक है. ये मुझे गिवन है 0.4. कितनी गिवन है? 0.4. और ये गिवन है 0.2. इसका वेट कितना है? 288 न्यूटन. इसका वेट कितना है? 288 न्यूटन. अब मुझे बताना है मैक्सिमम प्रेशर कितना लगा सकता है ये क्यूबॉइड. ये मैक्सिमम प्रेशर एक सरफेस पे कितना लगा सकता है? तो प्रेशर कब मैक्सिमम होगा? ऐसे मैक्सिमम होगा क्या? ऐसे मैक्सिमम होगा क्या? या ऐसे मैक्सिमम होगा? बताओ प्रेशर कैसे मैक्सिमम होगा? मेरे हिसाब से प्रेशर ऐसे मैक्सिमम होगा. कैसे मैक्सिमम होगा? ऐसे. अब देखो अपन इस पे मार्क भी कर देते हैं. दिस इज 0.4 ये, और ये जो है ये हाइट, ये हाइट में इधर मार्क कर रहा हूं. ये कितनी है बच्चों? 0.2. ये कितनी है? 0.2. ये 0.4 है, ये 0.2 है, और ये लंबाई ये 0.6 है. तो एरिया कब प्रेशर कब मैक्सिमम होगा? जब एरिया मिनिमम होगा. मतलब 0.4 और 0.2 वाली साइड नीचे आए. 0.4 और 0.2 वाली साइड नीचे आए मतलब एरिया मेरे पास क्या आना चाहिए? 0.4 इंटू 0.2 मीटर स्क्वायर. तो मेरे पास प्रेशर क्या आएगा? मैक्सिमम. तो प्रेशर कितना आएगा? वेट तो मुझे पता है 288 न्यूटन. एरिया कितना है? 0.4 इंटू 0.2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? मैक्सिमम प्रेशर आएगा. सॉल्व करेंगे तो ये गया 0.1 टाइम्स एंड दिस गोज 72 टाइम्स एंड दिस गोज 0.1 times, okay, and this goes 36 times. So I got 3600 Pascal as my pressure. 3600 Pascal. These two decimals will going to create some 2 zeros over there, so it will be 3600 Pascal. Easy, quite easy I think. आसान ही था, कोई डिफिकल्ट नहीं था. भाई ये वेट इसका कितना था? 288 न्यूटन. अब प्रेशर मैक्सिमम चाहिए तो मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, और कोई तरीका नहीं है रखने का. प्रेशर मैक्सिमम तब आएगा जब मैं इसको ऐसे रखूंगा. तो ये छोटा 0.4 और ये छोटा 0.2. तो एरिया क्या हो गया? 0.4 इंटू 0.2. वेट कितना है? 288. तो मेरे पास प्रेशर कितना आ गया? 3600 पास्कल. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, then we will going to end this topic, and in the next lecture we will going to begin a new topic. So write down the new question, that is the fifth question that we are doing, and it is what is the height of mercury which exert the same pressure as 20 centimeter of water column.
take density of mercury as 13.6. Take density of mercury as 13.6 gram per centimeter cube. Now what is given to me, that what is the height of mercury which will exert the same pressure, what is the height of mercury which will exert the same pressure as 20 centimeter of water column, as 20 centimeter of water column. Take density of mercury as 13.6 gram per centimeter cube. Okay, so जो मुझे हाइट वाटर कॉलम की दी है, इट इज गिवन टू मी एज 20 सेंटीमीटर, एंड व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ मरकरी. प्रेशर दोनों का सेम है, Hg और H2O का मुझे प्रेशर सेम करना है. प्रेशर मुझे पता है रो ऑफ Hg इंटू एच ऑफ Hg इंटू जी होगा, और प्रेशर वाटर का क्या होगा, रो ऑफ H2O इंटू एच ऑफ H2O इंटू जी. अब सी G एंड G विल गोइंग टू गेट कैंसिल आउट. यही बोला उसने, प्रेशर क्या हो, दोनों का सेम एक्सर्ट करें, दोनों प्रेशर क्या करें, सेम एक्सर्ट. ये गिवन था, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, रो इंटू एच इंटू जी, रो इंटू एच इंटू जी. जहाँ पे रो एच जी के लिए एच जी की लिखूंगा, एच एच जी का आएगा, यहाँ पे रो H2O का आएगा, और यहाँ एच H2O का आएगा. मतलब ये वाटर है, आप इधर देखें, इसमें वाटर भरा हुआ है. कितने भरा हुआ है, 20 सेंटीमीटर तक. कितना भरा हुआ है बच्चों, 20 सेंटीमीटर तक. तो उसने पूछा कि अगर एक में मरकरी भर दूं, एक में क्या भर दें अपन, मरकरी भर दें, तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, उसकी हाइट कितनी रहेगी कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, दोनों में सेम आए. तो यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, रो ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इंटू जी. यहाँ पे प्रेशर आएगा रो ऑफ मरकरी इंटू हाइट ऑफ मरकरी इंटू जी. दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल. तो जी ने जी को मारा, हमारे पास बचा रो ऑफ एच जी. रो ऑफ एच जी मुझे गिवन है 13.6. बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, जो हमने लिखा था वो केजी पर मीटर क्यूब में था. यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, सीजीएस में गिवन है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. हाइट किसकी निकालनी है मुझे, मरकरी की निकालनी है. रो ऑफ वाटर, सीजीएस सिस्टम में रो ऑफ वाटर कितना होएगा, आप इधर देखें, रो ऑफ वाटर अगर आपको नहीं याद सीजीएस सिस्टम में, तो आपको एसआई में पता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब. कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब. कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 इंटू 10 टू दी पावर 3. केजी को किस में कर लिया, ग्राम में, और मीटर क्यूब को करना है किस में आपको, सेंटीमीटर क्यूब में. तो 10 की पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आ जाएगा आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो वैल्यू पुट कर देते हैं, रो ऑफ वाटर विल बी 1 एंड एच ऑफ वाटर इज गिवन टू मी एज 20 सेंटीमीटर. तो एच ऑफ मरकरी आ जाएगा मेरे पास 20 डिवाइड बाय 13.6 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. So we have done ample amount of questions on pressure by fluids, that is pressure exerted by fluid columns we have seen, and we have done examples on pressure also. In next lecture we will going to continue this chapter, and the next topic will be buoyancy and buoyant force. Buoyancy and buoyant force. So thank you for today. We will going to continue in our next lecture.